Hello students, good morning and welcome back to the English online class session. I am here with the second part of the video on the chapter The World in a Wall, which is written by Gerald Durrell, who was a great British author and a naturalist, a conservationist and a television presenter. And he also founded the Durrell Wildlife Conservation Trust on the Channel Island of Jersey in 1958. He is also accredited with writing 33 books. Out of them, the best-selling books are The Barefoot Beagles, A Zoo in My Luggage, Catch Me a Colobus and The Stationary Ark. Now let us quickly revise what we learnt in the previous video. The lesson starts with a scene where the author finds a mother scorpion in the wall. He described the first appearance of the scorpion as she is wearing a brown fur coat. After observing closely, he noticed that she has a number of baby scorpions on her back. He took that scorpion in a matchbox and hurried to his villa. So, in this story, the narrator is narrating an incident of his life. इस स्टोरी में नैरेटर अपने लाइफ के एक इंसिडेंट को नरेट कर रहा है जिसमें वो बता रहा है कि एक बार उसे वॉल पर एक मदर स्कॉर्पियन मिली थी और जब नैरेटर उस स्कॉर्पियन को देखता है तो उसे लगता है कि जैसे वो एक पीले रंग का कोट पहने हुई है, लेकिन वो कोट नहीं था बल्कि उसने अपनी पीठ पर अपने बच्चों को रख रखा था। अब ये सीन नैरेटर को इतना इंटरेस्टिंग लगा कि उसने सोचा कि वो मदर स्कॉर्पियन और बेबी स्कॉर्पियंस को लेकर के अपने विला में जाएगा और बेडरूम में रख देगा। सो ही प्लेस्ड द मदर स्कॉर्पियन विथ हिज फैमिली इनटू अ मैच बॉक्स एंड हरी टू द विला। और इसलिए वो मदर स्कॉर्पियन को एक मैच बॉक्स में रखता है और विला की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बट अनलकीली एज ही एंटर्स द डोर द लंच हैज़ टू बी सर्व्ड। सो दुर्भाग्य से वो जैसे ही डोर से एंटर करता है उसे ये पता चलता है कि सभी लोग लंच करने जा रहे हैं। सो ही जॉइंस द फैमिली फॉर द मील इन द डाइनिंग रूम। और इसलिए वो फैमिली को ज्वाइन कर लेता है और लंच करने डाइनिंग रूम में जाता है और उस मैच बॉक्स को जिसमें उसने मदर स्कॉर्पियन को रखा था उसको ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर रख देता है। सो आई एक्सप्लेन यू द स्टोरी टिल हियर दैट as Larry finishes his lunch first, he goes to the drawing room to fetch the cigarettes. And talking thoughtlessly, he opens the matchbox. So, Larry का लंच पहले फिनिश हो जाता है और वो सिगरेट लेने के लिए ड्राइंग रूम में जाता है और वो बात करते करते सिगरेट को लाइट करने के लिए मैच बॉक्स को खोलता है। Now let's see what happens next. What happens when he sees the scorpion in the matchbox. So let's move ahead to the next paragraph. Now I maintain to this day that the female scorpion meant no harm. She was agitated and a trifle annoyed at being shut up in a matchbox for so long, and so she seized the first opportunity to escape. So, the narrator here tells us that he accepts till this date that female scorpion meant no harm. नैरेटर कहता है कि वो आज तक इस बात को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि वो फीमेल स्कॉर्पियन किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। इनफैक्ट शी वॉज एजिटेटेड। एजिटेटेड मीन्स डिस्टर्ब्ड और वरीड और annoyed. And a trifle means a little bit, and she was a little bit annoyed because she was being shut up in the matchbox for so long. So क्योंकि वो स्कॉर्पियन मैच बॉक्स में इतनी देर से बंद थी इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ा सा वरीड थी, थोड़ा सा गुस्से में थी और इसलिए शी सीज्ड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। सीज्ड मीन्स टू ग्रैब। सो शी ग्रैब्ड हर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप आउट ऑफ द मैच बॉक्स। इसलिए उसने मैच बॉक्स से बाहर निकलने का ये जो पहला मौका था जब लैरी ने उसे खोला उसको उसने ग्रैब कर लिया और बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। शी hoisted herself out of the box with great rapidity. Hoisted means to raise herself. So स्कॉर्पियन ने अपने आप को मैच बॉक्स से बाहर निकालने के लिए बहुत तेज़ी से उठाया। While her babies were still clinging on to her back desperately. Desperately means helplessly.
और उसके बेबीज अभी भी अपनी माँ की बैक से वैसे ही चिपके थे, एज दे कांट डू एनीथिंग इन दिस except to maintain their position firmly, and scuttled onto the back of Larry's hand. Now, scuttled means to walk with quick, short steps. So, the scorpion started walking on Larry's hand. Scorpion Larry के हाथ पर move करने लगी. There, not quite certain what to do next, she paused, her sting curved up at the ready. स्कॉर्पियन को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो रुक गई और उसके स्टिंग मीन्स होता है डंक, और उसके डंक ऊपर की तरफ मुड़े हुए थे जैसे वो तैयार हो. नाउ वी ऑल नो दैट जब कभी कोई अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती है, तो स्कॉर्पियन अपने स्टिंग को रेडी कर लेता है ताकि वो जल्दी से किसी को बाइट कर सके अगर कोई प्रॉब्लम हो तो. और उसी तरह स्नेक्स भी अपने हुड को रेडी रखता है. इसीलिए वो स्कॉर्पियन भी अपने स्टिंग को रेडी रखे हुई थी. लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज. नाउ लैरी फील्स दैट समथिंग इज मूविंग इन हिज हैंड. अब लैरी को उस स्कॉर्पियन के क्लॉज का मूवमेंट अपने हाथों में फील होता है. ही ग्लांसेस डाउन टू सी वॉट इट वॉज. और वो नीचे देखता है कि वो क्या था. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज्ड. और ठीक उसी पल से सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और कन्फ्यूजन बढ़ने लगता है. नाउ लेट्स सी हाउ डज लैरी रिएक्ट व्हेन ही कम्स टू नो दैट इट वॉज अ स्कॉर्पियन विच वॉज मूविंग ऑन हिज हैंड. As he sees the scorpion in his hand, he uttered a roar of fright. Fright means fear. That made Lugaridzia drop a plate and brought Roger out from beneath the table. Beneath means under. Barking wildly. अब जैसे ही लैरी स्कॉर्पियन को अपने हाथ में देखता है, वो एक बहुत ज़ोर से चीख मारता है. Utter means to speak out and roar means to make a loud sound. So he makes a loud sound out of fear, which causes Lugaridzia to drop her plate. I told you in the previous video that Lugaridzia was their maid. अब क्या हुआ? लैरी के चीखने के कारण लुगरिड्जिया घबरा गई और उसके हाथ से प्लेट छूट गई. Can you see this in this picture? And as she dropped her plate, Roger also came out and started barking wildly. और प्लेट के गिरने की आवाज़ से रॉजर, जो टेबल के नीचे छुपा हुआ था, वो भी बाहर निकल आया और ज़ोर से बाग करने लगा. नाउ विथ अ फ्लिक ऑफ हिज हैंड ही सेंट द अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन फ्लाइंग डाउन द टेबल. नाउ फ्लिक मीन्स टू हिट समथिंग लाइटली एंड क्विकली विथ योर फिंगर और हैंड इन ऑर्डर टू मूव इट. जब आप किसी इंसेक्ट को या किसी भी क्रिएचर को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखते हैं तो अक्सर आप उसे अपने हाथ से या किसी स्टिक से थोड़ा सा मूव करते हो, ये देखने के लिए कि वो अलाइव है या डेड है, या कभी कभी आप उसे हाथ से झटक देते हो कि वो कहीं और चला जाए. तो उसी तरह लैरी ने भी उसे अपने हैंड से एक फ्लिक किया और जिससे वो अनफॉर्चुनेट स्कॉर्पियन उड़ता हुआ टेबल के नीचे जा गिरा. एंड शी लैंडेड मिडवे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली. और वो कहाँ गिरा? वो मार्गो और लेस्ली के बीच में गिरा. स्कैटरिंग बेबीज लाइक कॉन्फेटी एज शी थम्ड ऑन टू द क्लोथ. और जिससे उसके बेबीज बिखर गए जैसे कॉन्फेटी. नाउ व्हाट इज़ अ कॉन्फेटी? कॉन्फेटी मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर विच आर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज. आपने देखा होगा जब किसी की बर्थडे होती है या और भी दूसरा कोई सेलिब्रेशन होता है तो कभी कभी बैलून्स के अंदर कलर्ड पेपर भर दिए जाते हैं, या कभी कभी कुछ फायरवर्क्स होते हैं उसमें भी कलर्ड पेपर भरे जाते हैं, जिससे जब वो बर्स्ट होते हैं तो कलर्ड पेपर्स ज़मीन पर बिखर जाते हैं. उसी तरह स्कॉर्पियन के बच्चे भी ज़मीन पर बिखर गए एज शी थम्ड ऑन टू द क्लोथ. नाउ थम्ड मीन्स स्ट्राइक हैविली. नाउ फॉर whom she is referred to here? She here is referred to the mother scorpion. So as the mother scorpion thumped onto the cloth of Margot, her babies scattered like confetti. Means जैसे ही माँ स्कॉर्पियन मार्गो की ड्रेस पे जाके गिरती हैं वैसे ही उसके बेबीज कॉन्फेटी की तरह ज़मीन पर बिखर जाते हैं. Now thoroughly enraged. Enraged means angry. So the mother scorpion becomes very angry at this kind of treatment. So the creature sped towards Leslie. This creature moves very fast towards Leslie.
अब स्कॉर्पियन को इस तरह के व्यवहार पे बहुत गुस्सा आता है और वो तेज़ी से लेस्ली की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हर स्टिंग क्यूवरिंग विथ इमोशन, और उसके जो स्टिंग है वो बहुत गुस्से से क्यूवर कर रहे हैं। क्यूवर मीन्स टू शेक आउट ऑफ एंगर। नाउ लेस्ली leaped to his feet, overturning his chair and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot. अब जैसे ही लेस्ली ने स्कॉर्पियन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, वो कूद गया, जिससे उसकी चेयर पलट गई। ओवरटर्न मीन्स पलटना। और उसने स्कॉर्पियन को अपने नैपकिन से फ्लिक किया, अपने नैपकिन से झटक दिया, जिससे वो स्कॉर्पियन रोल करता हुआ, लुढ़कता हुआ मार्गो के पास आ गया। एंड मार्गो promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce, जिससे मार्गो तुरंत इतनी ज़ोर से चीखी जितनी तेज़ आवाज़ तो रेलवे इंजन भी नहीं निकालता। रेलवे इंजन भी इतनी तेज़ आवाज़ निकालने पर प्राउड फील करता होगा। दैट मीन्स शी लेट आउट अ स्क्रीम विच वॉज इवन लाउडर देन अ रेलवे इंजन। Now mother, completely bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos. Now bewildered means confused, shocked or puzzled, and chaos means a disturbance. So now as Margot screamed, the mother got entirely confused. She could not understand what is happening and why is it happening. She is now unable to understand how the atmosphere changed from a peaceful one to a chaotic one. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक तो वहाँ शांति थी और ऐसा क्या हो गया है कि सभी लोग चीख रहे हैं और वो माहौल अशांति में बदल गया है। So she puts on her glasses and peered down the table to see what was causing the pandemonium. इसलिए वो अपनी आँखों में चश्मा डालती हैं और वो टेबल के नीचे झांकती हैं ये देखने के लिए कि किस वजह से ये डिस्टर्बेंस है, किस वजह से ये शोर है। ना पैंडेमोनियम मीन्स ट्यूमल्ट और वाइल्ड अप्रोर, एक ज़ोरदार शोर, एक डिस्टर्बेंस, एक अव्यवस्था। तो वो ये देखने की कोशिश करती हैं कि किस वजह से ये अव्यवस्था हो रही है। एंड एट दैट मोमेंट मार्गो इन अ वेन attempt to stop the scorpion's advance hurled a glass of water at it. एंड एट दैट सेम मोमेंट, और ठीक उसी पल मार्गो एक वेन अटेम्प्ट करती है। वेन मीन्स यूजलेस एंड अटेम्प्ट मीन्स ट्रायल। एक यूजलेस कोशिश करती है स्कॉर्पियंस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। सो व्हाट डज शी डू? शी हर्ल्स अ ग्लास ऑफ वाटर एट द स्कॉर्पियंस। नाउ हर्ल्ड मीन्स टू थ्रो समथिंग विथ ग्रेट फोर्स। सो वो एक ग्लास पानी स्कॉर्पियंस के ऊपर बहुत तेज़ी से डालती है ताकि स्कॉर्पियंस चलना बंद कर दें और वो रुक जाएं। Though it does not happen at all, as the shower completely missed the animal, however, it successfully drenched the mother. Drenched means to make completely wet. So this means वो जो पानी फेंकती है वो बिल्कुल भी स्कॉर्पियन पर नहीं पड़ता, बल्कि वो उसकी माँ पर गिर जाता है। Who, not being able to stand cold water, promptly lost her breath and sat gasping at the end of the table, unable even to protest. अब उनकी मदर को ठंडे पानी में भीगने से कुछ प्रॉब्लम थी, जिससे वो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनको ब्रीथिंग में कुछ डिफ़िकल्टी होने लगती है। एंड शी लूजेज हर कंट्रोल ओवर हर ब्रेथ एंड शी सैट breathing heavily at the end of the table. To gasp means to breathe heavily with an open mouth. और वो मुंह खोल करके लंबी लंबी सांसें भरने लगती हैं और अब तो वो कुछ बोल भी नहीं पाती हैं। The scorpion had now gone to ground under Leslie's plate while her babies swarmed wildly all over the table. अब मदर स्कॉर्पियन मूव करते करते लेस्ली की प्लेट के नीचे चली जाती हैं, जबकि उसके बेबीज़ पूरे टेबल पर वाइल्डली क्राउड बना करके घूम रहे हैं। स्वार्म मीन्स टू मूव इन लार्ज नंबर्स। रॉजर mystified. Mystified means unable to understand. Roger, mystified by this panic but determined to do his share, ran round and round the room barking hysterically. Hysterically means madly. Now Roger, the family dog, could not understand what is happening and who is causing it. So he was mystified. He cannot understand what was causing this trouble, and रॉजर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और इसलिए
वो अपने हिस्से का काम करने के लिए टेबल के चारों ओर घूमने लगता है और ज़ोर से पागलों की तरह बाग करने लगता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इट्स दैट सिली बॉय अगेन बेलोड लैरी। नाउ बेलोड मीन्स टू शाउट लाउडली। सो लैरी आस्क्स लाउडली, क्या इस बार फिर वही ये पागल लड़का है? दैट मीन्स जेरी हमेशा कोई ना कोई एनिमल को कैप्चर करके लाता था जिसकी वजह से फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होती थी। तो लैरी पूछता है, क्या फिर से इस प्रॉब्लम की वजह जेरी ही है? एंड मार्गो सेज, लुक आउट, दे आर कमिंग। देखो देखो, वो आ रहे हैं। नाउ हु इज दे हियर आर द स्कॉर्पियंस। All we need is a book, roared Leslie. Now Leslie shouted, we only need a book. Now Leslie, who is one of Jerry's elder brothers, got an idea to hit those scorpions with a book. उसे एक आइडिया मिला कि वो स्कॉर्पियन को एक बुक से मार सकता है। So he said, all we need is a book. हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय वो एक बुक है। Don't panic, hit them with a book. घबराओ मत, उन्हें हम एक बुक से मारते हैं। What on earth is the matter with you all? Mother kept imploring, mopping her glasses. Now imploring means questioning, asking, and mopping means wiping. So mother, wiping on her glasses, she kept on asking that what on earth is the matter with you all. वो अपनी glasses को पोंछती रहती हैं as it had become wet when Margot had thrown water on it. और वो उनसे पूछती रहती हैं कि आखिर तुम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है। And one of her children replies, it's that bloody boy. He will kill the lot of us. Look at the table, knee deep in scorpions. So he says, इस बार फिर से उस बदतमीज़ लड़के ने कोई शैतानी की है। वो हम सबको मार डालेगा। देखो टेबल पर, टेबल पूरा स्कॉर्पियन से कवर्ड है। क्विक क्विक डू समथिंग, लुक आउट। वो कहता है, जल्दी करो, कुछ करो। Stop screeching and get a book, for God's sake. You are worse than the dog. Shut up, Roger. So, all the brothers and sisters are in panic now and they are arguing to each other. And he says, stop screeching. Screeching means to shout. So, stop shouting and get a book, for God's sake. भगवान के लिए एक बुक लाओ. You are worse than the dog. तुम तो एक डॉग से भी बुरे हो. Shut up, Roger. Roger से वो कहता है कि चुप रहो. By the grace of God, I was not bitten. Now Leslie says, ईश्वर की कृपा से कम उसे अभी तक काटा तो नहीं गया। That means स्कॉर्पियन ने अभी तक किसी को काटा नहीं। Look out, there's another one. Quick. And he says, देखो, ये दूसरा भी आने लगा। जल्दी करो और बुक लाओ ताकि हम उसे बुक से हिट कर सके। Now since no one is getting up to get the book, he again says, oh shut up and get me a book or something. But how did the scorpions get on the table, dear? So here again the mother asks that how did the scorpions get on the table? माँ फिर से पूछती हैं कि आखिर स्कॉर्पियंस टेबल पर आए ही कैसे? And he answers, that bloody boy. Every matchbox in the house is a death trap. So he says, इस बार फिर से ये वही पागल लड़का है। हर मैच बॉक्स में उसने कुछ ना कुछ ऐसा रखा है जिससे किसी की मौत हो सकती है। हर मैच बॉक्स एक मौत के लिए बिछाया गया जाल है। Now someone says, Look out, it's coming towards me. Quick, do something. देखो, वो मेरी तरफ आ रहा है। जल्दी करो, कुछ करो। Hit it with your knife. Your knife? Go on, hit it. और कोई उसे कहता है कि उसे अपनी नाइफ से ही मार दो। हाँ, आगे बढ़ो और उसे अपनी नाइफ से ही मार दो। Now let's see what happens next. Since no one had bothered to explain things to him, Roger was under the mistaken impression that the family was being attacked and that it was his duty to defend him. Defend means to protect or to save. This means Roger is still unable to understand that what is happening. अभी तक रॉजर को किसी ने कुछ समझाया नहीं कि क्या हुआ और रॉजर को ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ ने फैमिली पर हमला किया है और अब ये उसकी ड्यूटी है कि वो सबको सेव करे, सबको बचाए। So as Lugaridzia was the only stranger in the room, he came to the logical conclusion that she must be the responsible party. So he bit her in the ankle. This did not help matters very much. Now as Lugaridzia was the only stranger in that room, Roger thought that she is responsible for all this confusion, and so he bit her in the ankle.
लुकेरिया ही उस कमरे में एक स्ट्रेंजर थी और इसलिए रॉजर ने ये कंक्लूड किया कि वही जिम्मेदार है इन सब मुसीबत की, और इसलिए उसने उसको एंकल पर काट लिया। हाउएवर दिस डिड नॉट हेल्प वेरी मच, इससे बहुत कुछ हुआ नहीं और प्रॉब्लम्स और वर्स हो गई। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। By the time a certain amount of order had been restored, all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery. Cutlery means cutting utensils like knives and fork. So, जब तक सबको समझ में आया कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और वहाँ कुछ शांति हुई, कुछ व्यवस्था बनी, तब तक सारे बेबी स्कॉर्पियंस ने प्लेट्स के नीचे एक जगह बना ली थी और अपने आप को प्लेट्स के नीचे और कुछ नहीं तो कटलरी के नीचे अपने आप को छुपा लिया था। इवेंचुअली आफ्टर इम्पैशन प्लीज ऑन माई पार्ट एंड बैक्ड अप बाई मदर, Leslie's suggestion that the whole lot be slaughtered was quashed. Now impassioned means filled with great emotions and please means request. Now Larry has suggested everyone to slaughter or to kill all those scorpions. However, after the passionate pleas of the narrator, Jerry and their mother, this decision of killing the scorpions was stopped. Quashed means stopped. सो लेस्ली का ये सजेशन था कि सारे स्कॉर्पियंस को मार दिया जाए। हालांकि जेरी के रिक्वेस्ट करने पर और माँ के कहने पर भी लेस्ली रुक गया और स्कॉर्पियन को मारा नहीं गया। वाइल द फैमिली स्टिल सिमरिंग विथ rage and fright retired to the drawing room. Now simmering means to cook slowly and here it means that the family was still angry. The family was still in the state of anger and fear. फैमिली अभी भी डरी हुई थी और गुस्से में थी। एंड दे ऑल रिटायर टू द ड्राइंग रूम, और वो लोग ड्राइंग रूम में चले गए। आई स्पेंट हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज एंड picking them up in a teaspoon and returning them to their mother's back. What happened here? While the family has gone to the drawing room to take rest, the narrator spends half an hour and he picks all the babies of scorpion in a teaspoon and places them back to their mother's back. जब नैरेटर की फैमिली रेस्ट करने के लिए ड्राइंग रूम में जाती है तब नैरेटर आधा घंटा स्पेंड करता है और वो एक एक करके स्कॉर्पियन के सारे बच्चों को स्पून में रखता है और उसके बाद उसकी माँ की बैग पर वापस रख देता है। देन आई कैरीड देम आउटसाइड ऑन अ सॉसर एंड विद द अटमोस्ट रिलेक्टेंस। नाउ रिलक्टेंस मीन्स अनविलिंगनेस, बिना इच्छा के। सो दिस मीन्स though Jerry was not interested in releasing the scorpion back on the garden wall, but still, because of the panic and chaos which was caused because of the scorpion, he had to put all the scorpions on a saucer. Saucer means plate, and he had to place them back on the garden wall again. This means हालांकि जेरी स्कॉर्पियंस को छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई उसकी वजह से उसे सारे स्कॉर्पियंस को एक सॉसर में रख करके वापस गार्डन वॉल में छोड़ना पड़ा। रॉजर एंड आई वेंट एंड स्पेंट द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद रॉजर और नैरेटर बाकी आफ्टरनून को स्पेंड करने हिल साइड पर गए। फॉर आई फेल्ट इट वुड बी प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स सेंसिबल, to allow the family to have a siesta before seeing them again. Now siesta means afternoon rest, so he thought it would be sensible to leave the family for some time to have rest before they see Jerry and Roger again and they get angry. So this is how the story comes to an end. I hope you understood the chapter well and you also would have liked and enjoyed the chapter and the story. Now it is your task to jot down all the word meanings that I taught in these two videos, and you also have to write down the answers to the short answer questions and reference to the based type questions yourself in your assignment notebook and send it to me in the homework group. So children, that's all for today. We will meet up again with a video on another chapter. Thank you children.